بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ یہ آیت متقین اور پرہیزگاروں کے بارے میں خوشخبری سناتی ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان متقین کے اوصاف آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم ان پرہیزگاروں کے اوصاف کو دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ کسی بھی صورت میں ضرورت مندوں کو اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں اور اس پر احسان نہیں رکھتے۔ نمبر 4، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ پرہیزگار لوگ صرف قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ ان کتابوں کو بھی سچ مانتے ہیں جو پہلے انبیاء پر اترے، جن کے نام زبور، انجیل، تورات ہیں۔ یہود تورات کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ عیسائی تورات کے احکام نہیں مانتے لیکن اس کی اخلاقی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تاہم انجیل سے پہلے کی دوسری زبانوں اور ملکوں کی آسمانی کتابوں کی نسبت مسلمانوں کی طرح ادب اور احتیاط بالکل نہیں کرتے۔ پارسی اوسطا کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ برہمن وید کے سوا کسی کتاب کو آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ لیکن قرآن پر ایمان لانے والا مجبور ہے کہ صحیفہ ابراہیم، تورات، زبور، انجیل کو اللہ کی کتابیں مان کر یقین کرے اور دوسری اگلی آسمانی کتابوں کی، جن میں آسمانی تعلیمات کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تکذیب نہ کرے۔ یہود اور عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں نے زبور، تورات اور انجیل میں اپنی مرضی سے احکام الہی کو بدل دیا اور اپنی مرضی سے اصل حکم کو تبدیل کر کے لوگوں کو تحریف شدہ حکم سنا دیا۔ اب یہ تبدیل شدہ آسمانی کتابیں ہیں جس میں ہدایت کا اصل سرچشمہ گم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب صرف ایک قرآن پاک ہی ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور اصل حالت میں، اور اس کے احکام بھی محفوظ ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان علماء نے قرآن پاک کے اصل نسخے میں یعنی کلام الہی میں اس میں تبدیلی نہیں کی، لیکن ترجمہ اور تفسیر میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی ہیں۔ اے قرآن والو، قرآن مجید سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو، اس کو اچھی آواز سے پڑھو، اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن مجید کے مذکورہ فضائل اور برکات اور اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھا اور سیکھا جائے، اس کی قرأت و تلاوت پر دسترس حاصل کی جائے، اس کے معنی اور مطالب تک رسائی حاصل کی جائے اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کیا جائے، اور ہم اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کی تشکیل کریں تاکہ ہم اپنی عظمت رفتہ حاصل کر سکیں۔ آج سے نصف صدی قبل ہر مسلمان بچے کی تعلیم کا آغاز قرآن پاک سے ہوتا تھا اور یہ تعلیم مساجد سے دی جاتی تھی، لیکن افسوس ہے کہ مدارس جو کہ انگلش سکول کی طرز کے رواج پا رہے ہیں، جس میں مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی۔ حالانکہ آپ کو کوئی بھی غیر مسلم ایسا نہیں ملے گا جسے اپنے مذہبی کتاب پڑھنے نہ آتی ہو۔ ایک ہم ہیں کہ اپنی پوری زندگی ہر قسم کے علوم کی تحصیل پر صرف کر دیتے ہیں، BA،
MA करते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो अल्लाह की किताब नहीं पढ़ते। हालांकि एक मोमिन और मुस्लिम के लिए असल मुसाबकत और मुकाबले का मैदान भी यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्सों पर रश्क जायज़ है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो अपना माल रात दिन अल्लाह की राह में खर्च करता है, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और रात दिन कुरान की तालीम और खिदमत में लगा रहता है। गुज़श्ता अंबिया की जितनी भी किताबें हैं वो सब तहरीफ और तब्दील शुदा हैं। तौरात जल जल कर खाकस्तर हुई और जले हुए अवराक से बार बार तहरीर की गई। इंजील में तब्दीलियाँ खुद इसके तर्जमा करने वालों ने बार बार की। ये हाल उन किताबों का इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको दायमी और आखिरी किताबें बनाकर नहीं भेजा था। अलबत्ता कुरान पाक की निस्बत अल्लाह ताला का ये वादा है कि वो हमेशा के लिए बाकी है और हमेशा रहेगी। अल्लाह पाक सूरत हजर में फरमाता है, हमने इस नसीहत वाली किताब को उतारा और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुत्तकीन की आखिरी सिफत ये बयान की गई है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद ज़िंदगी के बाद मौत है। अल्लाह पाक ने इसे यौम आखिर या यौमुद्दीन भी कहा है। कुरानी तालीमात में इस अकीदे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है। कुरान का हकीम का शायद ही कोई सफ़ा हो जिसमें किसी न किसी अंदाज से इस अकीदे का जिक्र ना किया गया हो। ये वजाहत से बता दिया गया है, आखिरत पर ईमान लाए बगैर इंसान के सारे अमाल बेकार हैं। अकीदा आखिरत में दर्ज झैल अमूर शामिल हैं। इंसान इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि अपने तमाम अमाल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। नंबर 2, दुनिया का मौजूदा निज़ाम अबदी नहीं है बल्कि इसका ख़ात्मा हो जाएगा। नंबर 3, इस आलम के ख़ात्मे के बाद अल्लाह एक दूसरा आलम बनाएगा। नंबर 4, कामयाबी और नाकामी का असल मेयार मौजूदा ज़िंदगी की खुशहाली या बदहाली नहीं है बल्कि दर हकीकत कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह के आखिरी फ़ैसले में कामयाब ठहरे, और नाकाम वो है जो वहाँ से नाकाम ठहरे। अकायद के इस मजमूए पर जिन लोगों को यकीन ना हो वो कुरान से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इन बातों का इनकार तो दरकिनार, अगर किसी के दिल की तरफ से शक की कैफियत भी हो तो वो भी इस रास्ता पर नहीं चल सकता जो इंसानी ज़िंदगी के लिए कुरान पाक ने तजवीज़ किया है। सूरह शूरा में अल्लाह पाक ने मुत्तकीन के औसाफ कुछ इस तरह बयान किए हैं, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं, और जो गुस्सा की हालत में माफ़ करते हैं और अपने परवरदिगार की पुकार का जवाब देते हैं, नमाज अदा करते हैं और उनके काम बाहम मशवरा से होते हैं, और हमने उनको जो दिया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और जब उन पर चढ़ाई हो तो वो बदला लेते हैं, और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। तो जो कोई माफ़ कर दे और नेकी करे तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और वो जुल्म करने वालों को प्यार नहीं करता। और अगर कोई मज़लूम होकर बदला ले ले तो इस पर कोई मलामत नहीं। मलामत तो उन पर है जो लोगों पर आज खुद जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक फसाद मचाते हैं, इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और बेशक जो मज़लूम होने पर भी जालिम को माफ़ कर दे और जुल्म सह ले तो ये हिम्मत के काम हैं। सूरत कसस में अल्लाह पाक मुत्तकीन की सिफ़ात कुछ इस तरह बयान करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, ये वो हैं जिनको दोहरा सवाब मिलेगा इसलिए कि उन्होंने सब्र किया और वो बुराई को भलाई से दूर करते हैं, और जो हमने दिया है इससे कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और जब कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे लिए हमारा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम सलामत रहो, हम ना समझों को नहीं चाहते।
सूरत दहर में अल्लाह पाक इनकी एक और सिफत बयान फरमाते हैं और अल्लाह पाक फरमाता है और खाने की खुद ज़रूरत होते हुए मस्कीन, यतीम और कैदी को खिला देते हैं। फलाह बड़े वसी मानों का हामिल है। इसमें हर किस्म की दुनियावी और उखरवी कामयाबी शामिल है। दुनियावी कामयाबी ये है कि इन्हें हिदायत नसीब हुई और ईमान की दौलत से बहरामंद हुए। उखरवी कामयाबी ये है कि उन्हें रोज़ क़यामत अपने अमाल सालेह का पूरा पूरा सिला मिलेगा। फ़िल हकीकत इंसानी ज़िंदगी का यही मकसूद है। अल्लाह पाक ने ये सिफ़ात बयान करके हमारे लिए एक नमूना छोड़ दिया है कि ऐसे ही लोग अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। दोस्तों, यही मुत्तकी अल्लाह ताला की मोहब्बत और दोस्ती के हकदार हैं जब वो हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी और पसंदीदगी पर नज़र रखते हैं और अपने किसी काम का बदला किसी इंसान से तारीफ़ या अंजाम या हर दिल अजीज़ी की सूरत में नहीं चाहते, तो अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ से अपने इनाम और मोहब्बत का सिला अता फरमाता है। इसका असर ये होता है कि बंदों में भी उनके साथ अकीदत, मोहब्बत और हर दिल अजीज़ी पैदा होती है।